اب ایک نکتہ آپ لوگوں کے لیے اگر سمجھ میں آ گیا تو قبول کر لو، ورنہ یہ اسٹیج والوں کے لیے، یہ علماء کرام کے لیے، ہماری برادری کی بات ہے۔ سنو، اگر سمجھ میں آ گیا تو رکھ لو، گھر کو لے جاؤ۔ اب سنو کان کھول کر، قسم رب ذوالجلال کی، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ ٹینشن نہ کر لو، اپن ہے تک آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی علم ہے۔ سبحان اللہ، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے استاذ اور ایک ہوتا ہے شاگرد۔ جو استاذ کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ شاگرد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا نبی علم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے، میرے نبی کو سمجھ لے، اور اگر جو پڑھ لے تو وہ علی المرتضی ہو جاتا ہے۔ جو سمجھ لے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو جاتا ہے۔ جو تحقیق کر لے وہ امام بخاری ہو جاتا ہے۔ جو اس کی ذات میں گم ہو جائے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسی شان والا بنایا۔ میرا نبی علم ہے، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں یہ علم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا خود کہتے ہیں انا مدینۃ العلم۔ میرے نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ میں عالم ہوں نہیں بولے حضور، میں علم ہوں۔ علم میں وہ سمندر علم ہوں جو جتنا غوطہ زن ہوتا جائے گا وہ اتنے بڑے درجے کا عالم بنتا چلا جائے گا۔ جو جتنا ڈوب جائے گا، مولا کائنات جتنا ڈوبے شاید ہی کوئی ڈوبا ہوگا۔ مولا علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو اتنے صفحات اتنے صفحات اتنے صفحات پر ہو جائیں گے، بھر جائیں گے کہ اگر ان صفحات کو جس پر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، ان صفحات کو اگر 7 اونٹوں پر ڈالا جائے تو وہ صفحات کے وزن سے وہ اونٹ بیٹھ جائیں گے مگر وہ تفسیر ختم نہیں ہو پائے۔ اللہ اکبر۔ صحبت میں بیٹھنے والے علی کے علم کا یہ عالم ہے، وہ جس نے بٹھا کر آنکھوں سے پلایا اس ذات اقدس کے علم کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ باب کا یہ حال ہے تو شہر کا حال کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی؟ ہاں سبحان اللہ۔ اسی لیے کتنی پاگل قوم ہے، دیکھو آپ، مینٹلی ریٹائرڈ قوم۔ نبی ان پڑھ ہے بول رہی، میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں آپ سے، ایسا نہیں ہے 100 سال پہلے بولے وہ کتاباں بند ہو گئے مول صاحب آپ کہیں کو کھول لے کے بیٹھے آپ، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے سو کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی۔ باب کا نام بول رہا ہوں، باب دعوت و تبلیغ، آیت نمبر بول رہا ہوں، دوسرے نمبر پہ جو آیت لکھے انہوں نے اس باب میں، اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے نبی کو ان پڑھ لکھے، نعوذ باللہ۔ ارے میں پوچھا، ارے پیارے بے وقوف، ان پڑھ بچی ملی تو کوئی بیوی بنانے تیار نہیں ہے، ان پڑھ بچہ ملا تو کوئی شوہر بنانے تیار نہیں ہے، ان پڑھ کو نبی کیسا بناتا رہے ہولے۔ سیلفی اسٹک معلوم نہیں تھا نا تو بازو والے آدمی سے لے لیتا تھا۔ ایسے ہو گئے حالت، گلوکوز پہ چل رہی حالت، حالانکہ بخار میرے کو ہے مگر ہاسپٹلائز آپ دکھ رہی۔ کیسا بولتے ہیں ارے نبی ان پڑھ ہے؟ میں بولا اگر تیرا نبی ان پڑھ ہے تو پھر ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھ رہا رہے ہو لے۔
किसी पढ़े लिखे का कलमा पढ़ ले। हम तो उसका कलमा पढ़ते हैं जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, मगर उसका उस्ताद उसको सिखाने वाला उसका रब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। वाह, बहुत देर के बाद चार्ज हुए उसका। जरा उतरने ना, तो चार्जिंग प्लीज। मैं तो डर गया था, वो लाड़ी क्या रे भाई, क्या है तकलीफ में, जलसा पूरा फ्लॉप जा रहा है क्या? आप आए तो फ्लॉप नहीं होता। हाँ, सुभान अल्लाह। तो अब जरा मसले को समझो भाई, कलमा आप पढ़ रहे हो, आपकी पहचान आपका नबी है, आपकी पहचान आपका नबी है, मुरीद की पहचान उसका मुर्शिद है। ये उलमा इकराम बैठे हुए, आप इनके नाम के साथ देखो, किसी के नाम के साथ मिसबाही लिखा हुआ है, किसी के नाम के साथ बरेली लिखा हुआ है, किसी के नाम के साथ रज़वी लिखा हुआ है, किसी के नाम के साथ अशरफी लिखा हुआ है। मेरे नाम के साथ अगर मदरसे की बात पूछे तो निजामी है, सिलसिले की बात पूछे तो नक्शबंदी है। ये हमारी पहचान है। हम क्या करते हैं भाई, हम कुछ भी नहीं है, मगर हमारी निस्बत बड़ी दमदार है। बात समझ रहे हैं आप? निस्बत बड़ी दमदार है। हमारे नाम के साथ देख खादरी लिखा है, नादान हमको मत देख, हमने जिस गौसे आजम का दामन थामा उस गौसे पाक को देख। सुभान अल्लाह। हम कमजोर लोग हैं, लेकिन हम बड़े सखी का घर, सखी घराने से ताल्लुक रखते हैं। हमने बड़े दाता का दामन पकड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? इंसान क्या करता, अपनी जो निस्बत रहती वो अच्छी बताता। आपको अगर पूछे आप कौन है, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्दुल जलील साहब, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का पोतरा। आपको पूछे तो आप अपना नाम बोलना ना, नहीं ऊपर लेके जाकर तारुफ कराते कि मालूम होना अपन कितने काम की चीज है। नहीं, ऐसा रहता तरीका। इसकी देखो बेवकूफ, हमारे नबी अनपढ़ है। अबे हौले, जब जिस कौम का नबी अनपढ़ हो तो कौम का आलम क्या होगा? जब नबी अनपढ़ है, जब सिखाने वाला जो सिखाने को आया वो अनपढ़ है, जो दिखाने वाला कुछ दिखाने आया वही अनपढ़ है, जो रास्ता बताने आया, जो हादी बनकर, रहनुमा बनकर, रहबर बनकर आया वही अनपढ़ है। तो तू क्या रास्ता देखेगा? अगर वो अनपढ़ है तो तू जहन्नम का कुत्ता है। आजा हमारी तरफ। हमने जिसका कलमा पढ़ा वो अनपढ़ नहीं है, वो तो ज़मीन पे बैठकर लामका की खबरें बयान आजा हमारी तरफ आजा। हमने उसका कलमा पढ़ा है जो मक्के की मदीने की धरती पर बैठकर जन्नत की बातें बताता है, जो है सारे नबियों के बाद आकर आदम अलैहिस्सलाम की बातें बताता है, जो सारे नबियों की दास्तान बयान करता है। अरे आजा, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो जन्नत के हुरनैन की भी खबर रखता है, जो जन्नत के रिजवान की भी खबर रखता है, जो अगलों की भी खबर रखता है और पिछलों की भी खबर रखता है। अरे आजा, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा वो इतना इल्म वाला, इतना इल्म वाला, इतना इल्म वाला है कि क़यामत में क्या होगा किसी के बाप ने नहीं बताया, मगर आमिना के लाल ने सब कुछ बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जन्नती जन्नत में कैसा जाएंगे, मेरे नबी को इल्म है। कौन दोज़ख में जाएगा, मेरे नबी को इल्म है। किसकी शफाअत कैसे होगी, मेरे नबी को इल्म है। और रब की शान का मालिक है, आमिना का लाल जानता है। किस किस के दिल में क्या है, सरकार जानते हैं। पर्दे के पीछे क्या है, सरकार जानते हैं। हाथ पड़े तो नजराना मिलता, हाथ पड़े मगर आज नाथ नहीं पड़ेंगे हम, कभी आज जब पड़ेंगे, जरा नजराना उठा के रखो। अरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अपन बाखबर नबी के गुलाम, अपन किसी गाफिल का कलमा नहीं, अपन इल्म वाली शाहजाद का कलमा पढ़ते, अपन किसी अनपढ़ का कलमा नहीं, जो मदीने की धरती पर बैठकर हाथ उठाकर बाग़े जन्नत की टहनियां तोड़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस ज़ात अक़दस का कलमा पढ़ते नहीं, जिसका रब उसे लामकां बुलाकर दूल्हा बनाता है, वो सब कुछ दिखा देता है, जो कुछ वो देखना चाहता है। हम उस बाखबर नबी के गुलाम हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर पूछे बाजुआन, अरे मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर कोई उस्ताद क्यों नहीं था? हमने बुला रहे, इसमें हिकमत खुदाबंदी थी। देखो, अगर कोई आदमी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब को पढ़ा दे, मिसाल दे रहा हूं, कहीं कल जाके उनको सुनाएंगे रिकॉर्डिंग, टेंशन ना चाहे। कोई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब को अगर कोई पढ़ा दे, उनके टीचर उस्ताद है, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब जो कुछ भी बेहतरीन डिसीजन लेंगे, इधर उनके उस्ताद चंद्रपुर में ऐसा कॉलर चढ़ा के फिरेंगे, सही ऐसे करते फिरेंगे। लोग मुझे क्या बात है, कॉलर चढ़ा के बोले वो चीफ मिनिस्टर है, अपना स्टूडेंट है। क्या बात बोले यार। मैं सिखाता हूँ, वो जो डिसीजन मैं बुलाता हूँ, मैं बताता हूँ। बात समझ में आई? नहीं आई? आई बेशक। मिनिस्टर उधर डिसीजन लेते रहता, इन्हें इधर इज्जत की धज्जियां उड़ा लेते फिरते रहते। अब मेरा नबी 5 साल का नबी बनकर नहीं आया, और मेरा नबी कोई छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए नहीं आया। मेरा नबी हाँ कह दे तो क़यामत तक हाँ है, मेरा नबी हाँ कह दे तो वो शरीयत है, मेरा नबी ना कह दे तो शरीयत में वो मना है। और मेरा नबी साहिब मौजज़ात बनकर आया, उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े, हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट आ जाए। अगर कोई नबी का उस्ताद होता, हुजूर इशारा करते चांद के 2 टुकड़े होता, पूरे मक्के में उस्ताद काला कहाँ चढ़ाता, उन्हें तो पूरे चुपे चढ़ा लेता। हमारी आवाज तक चली जा रही है। ये जो प्यारे मोहम्मद ने मौजूदा दिखाया, ये मैंने सिखाया। और अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई मेरे नबी की इंसल्ट करे, कोई मेरे नबी की बेअदबी करे। बाबू पैरा सामने ले लो, आज एक दिन अदब से बैठ जाओ। आलिम में कुछ पैरा करेंगे तो करना क्या, हम लोग आप फांसियां डाल थोड़ा आज एक दिन अदब कर लो दादा, आज एक दिन कर लो। आलिम एक की भी नजर यूं पड़ जाए तो अजाब आ जाएगा अल्लाह का। मसले को समझो, अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी की बेअदबी हो, अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई मेरे नबी से भी बड़ा हो।
کوئی میرے نبی پر بھی اپنے آپ کو مسلط کر سکتا ہو، اللہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا میرے حبیب کوئی آپ کو نہیں پڑھائے گا، میرے مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو پڑھائے گا، آپ کا رب آپ کو سکھائے گا۔ اور دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا، ہر اسماء پاک کا، ہر چیز کے ناموں کا علم سکھایا۔ ذرا غور کیجیے گا، ہر چیز کا نام کا علم ہم نے حضرت آدم کو سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ ذرا زور سے بولو، اللہ نے۔ اور ذرا زور سے، اللہ نے۔ یہ دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں حضرت آدم جانتے تھے، بے شک یہ جتنے چیزوں کے اشیاء کے نام ہیں حضرت آدم جانتے تھے۔ اب ذرا غور کرو، کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ دلیل دے رہا ہے جب میں آدم کو سکھا سکتا ہوں، یہ تو میرا حبیب ہے، اس کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ جب بندے کو سکھا سکتا ہوں، صفی اللہ کو سکھا سکتا ہوں، تو حبیب اللہ کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ محبوب کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ میں نے سب کچھ میرے مصطفیٰ کو میں نے سکھایا، اور کیسی شان سے سکھایا، ذرا یہ بھی دیکھو۔ حدیث شریف ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میں دن بھر کی تھکن کی وجہ سے یہ اونگنی آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازو والا سنا دو، ہماری طرح ہے، ہماری طرح۔ ابے بے وقوف، تیری طرح ہے بلکہ اونگلی نہیں آئی، تیرے کو عذاب سے بچانے کے لیے اونگلی آئی۔ آپ کچھ وہ کیسے مول صاحب؟ دیکھو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رہتا، دن بھر غریب آدمی کاروبار، تجارت، ملازمت، محنت، مزدوری کرتا، اب شام میں آنے کے بعد عشاء کے 17 تراویح کے 20 37 پڑھتا، 25 اچھا پڑھا، یہ جو ڈھلکا نا اس پر ڈبل ثواب، ایک نماز کا ثواب، دوسرا سنت رسول کا ثواب۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت۔ میں تھکن کی وجہ سے بول رہا ہوں، ڈبل ثواب بولے تو کہیں کل سے دبا کے سو جائیں گے، تھکن کی وجہ سے جو نیند آتی اس پہ بول رہا ہوں، ان لوگ صحیح ہو جائیں گے، جان بوجھ کر کے نہیں یہ مسئلہ ہے، تھکن کی وجہ سے غفلت ہو گئی، ہاں تھکن کی وجہ سے ایسا ہی، تھکن میں جا کے جو لگ جاتی ہے اس پہ ثواب، جان بوجھ کر سونے والے کو تمہارا یہ بھی مسئلہ سن لو۔ تو اب ہوا کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت میں ضعیف ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کمزور ہوں گے، دن بھر کام کر کے مجبوریوں غربت سے گزر رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب شام کو اگر نماز میں ان کو نیند لگ جائے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آمینہ کا لال کہتا ہے اے اللہ آج ایک دن میں اونگتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کے بوڑھوں کو اونگنے پر ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستوں ہوا کیا؟ نبی فرماتے ہیں مجھے اونگلی لگی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں مجھے جیسے ہی اونگلی لگی میں کیا دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے رب کا جلوہ ہے، نہیں
बाजू वाले बोलते हम नबी के बराबर है। हमने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, नबी के बराबर। तू भी सोता है, तुझे क्या दिखता है? सांप, बिच्छू, कुत्ते का बच्चा। मेरे ख्वाब तेरा सोना इतना खतरनाक है और मेरे नबी के सोने पे मेरी जान कुर्बान। आमिना का लाल फरवा रहा है, मैं जैसे ही ऊँघा मेरी आंखों के सामने मेरे रब का जलवा है। मैं अपने रब के जलवे देखता रहा। मेरे रब ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखा। मेरे सीने पे अपना दस्ते अक़दस रखा। जैसे ही दस्ते अक़दस रखा, अब वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने वो क्या हाल था। हमको समझाने के लिए हुजूर ने फरमाया दस्ते अक़दस रखा। जैसे ही उसने दस्ते अक़दस रखा, सारी कायनात मेरे सामने सुकेड़ दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैंने पूरी कायनात को अपनी हथेली के मानिंद देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्क़ से ग़र्ब तक मैंने सारी कायनात अपनी हथेली के मानिंद देखा। और अल्लाह ने मुझे उसके अंदर होने वाली तमाम चीजों का इल्म अता किया। सीखने वाला नबी जाने कैसे सीखा, सिखाने वाला खुदा जाने उसने कैसे सिखाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर का कोई और हुजूर पर मुसल्लत हो, हुजूर से बड़ा मर्तबा रखने वाला हो। इसलिए अल्लाह ने कहा हबीब आपको कोई दुनिया वाला नहीं सिखाएगा, क्योंकि हबीब मैंने आपको जैसा पैदा किया वैसा नबियों में किसी को पैदा नहीं किया। और बच्चों को कैसे पैदा किया जाएगा? आपको जैसे बनाया वैसा मैंने किसी रसूल को नहीं बनाया। आपको जैसी फजीलत दी वैसी फजीलत वाला कोई माँ अव्वल से लेके आखिर तक नहीं चलेगी। मेरे मुस्तफा मैंने आपको जो इज्जत और मर्तबा दिया वैसे मर्तबे वाला इस रब ने किसी को पैदा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। हबीब आप ही अव्वल है, आप ही आखिर है। बेशक, बेशक। मेरे हबीब आपके जैसा कोई नहीं है। आप बेमिसलो मिसाल है, आप बेमिसलो मिसाल है। आपकी तरह आपके जैसा ही कोई नहीं है। तो फिर आपका उस्ताद कैसे हो सकता है भाई? उस्ताद तो फजीलत वाला होता है। अभी उस्ताद अगर होगा तो आपसे फजीलत वाला बनाना पड़ेगा, और ये आपके रब को गवारा नहीं है। इसलिए प्यारे मुस्तफा आपके रब ने ये तय किया कि आपको आपका रब ही सिखाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को खुद सिखाया। अब दूसरी बात सुनिए, जब अल्लाह सिखाया हबीब सीखे तो फिर हबीब लिखते क्यों नहीं थे? पॉइंट टू बी नोटेड। हबीब लिखते क्यों नहीं थे? ये आप लोग इससे पहले कभी भी नहीं सुने ये टॉपिक, आज सुन लो। हबीब पाक अलैहिस्सलाम हुजूर लिखते नहीं थे, नहीं लिखते थे हुजूर। आप मुझे क्यों नहीं लिखते थे? जब अल्लाह सिखाया हुजूर सीखे तो हुजूर लिखना था, लिखते तो मसला खत्म हो जाता था, बाजू वालों का मुंह बंद हो जाता था। हुजूर लिखे क्यों नहीं? सुनो, आप कभी सुप्रीम कोर्ट गए? अल्लाह ना करे कभी किसी को जाने की नौबत आए, पूछा टेंशन न को। हाई कोर्ट गए? नहीं गए। अल्लाह आपके दुश्मन को भेजे, आप कभी ना जाए। आमीन, आमीन। आपका दुश्मन बोले तो कभी ना जाए। सुभान अल्लाह। कभी भी आप देखो जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज होता, उन्हें ऑर्डर पास करता नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखता नहीं। जज ऑर्डर देता, सामने टाइपराइटर बैठे हुए रहता, उन्हें लिखता। सांप ऊपर बैठ के बोलते, नीचे बैठ के लिखता, लिख के इन्हें जब का जब निकालता, पेपर देता।
तीनों सिग्नेचर करके नित तोड़ देते। मैं पूछा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आदमी को पिटाई कहीं उसको लिखना आता ही अरे मौलाना हल्लू बोलो कल जेल में तो अरे मौलाना सुना था पूरे सुप्रीम कोर्ट में जितने बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड आला जिहानत रखने वाले वकील हैं उन्हें उन सब का बाप है पढ़ाई में। मेरा इतना पढ़ा लिखना कहीं को नहीं आता। अरे कौन बोले जितना को नहीं आता आता उसको लिखने लिखता कहीं इतना बड़ा वकील इतना बड़ा जज है लिखता कहीं को नहीं। बाबरी मस्जिद जैसे मसले जो 25 साल कोई हल नहीं कर सके इन्हें बैठे बैठे हल कर दिया। लिखा कहीं क्यों नहीं? तो आवाज बढ़ाना तुम कहीं उड़ा रहे? पुलिस वाला है गए बात थोड़ा बना हेलो तो बोले मौलाना उसको लिखना आता तो लिखता नहीं क्यों नहीं? तो बोले मौलाना वो कुर्सी इतनी इज्जतदार है वहां बैठ के लिखना ये जज की शान के खिलाफ है। यानी कि अब वो आदमी इस पोजीशन पे पहुंच गया अब उन्हें यूं लिख लेते बैठना ये उसकी शान के खिलाफ है। यही बात समझ आई। यानी कि अब उन्हें लिखने वाली पोजीशन से भी बालातर हो गया। ये लिखना ऑर्डर लिखना छोटों का काम है, बड़ों का काम फैसला सुनाना है। इस मंजिल पे वो पहुंच गया और अरब की जाहिल कौम लिखना ऐब समझती थी और रब ने चाहा मेरे मुस्तफा तुम इनके उनके मर्तबे के बराबर नहीं हो, तुम सारे मर्तबों में सबसे आला हो। मेरे मुस्तफा तुम लिखोगे नहीं, तुम बोलते जाओ, कातिबा ने वहीं से दिखाते चले तो बात समझ में आई दोस्तों। नबी उस शान के मालिक है कि जहां अल्लाह उनको उनसे लिखवा कर उनकी इस इज्जत में भी अगर कोई कमी समझता है तो अल्लाह बदलाना चाहता है। देखो मेरा नबी ऐसी शान वाला है, लिखता नहीं है फरमा देता है। लिखने वाले लिख लिया करते, मैंने नबी को ऐसी इज्जत वाला बनाया, ऐसी शान और अजमत वाला बनाया। प्यारे दोस्तों अब जरा गौर करो। फिर उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ, अरब में शायर बड़े थे, बहुत बड़े शायर थे, इतने बड़े बड़े शोरा थे अरब में, उनके अशार काबे की दीवार पर लटकाए जाते थे। शायर थे अरब में बड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया,
पुलिस वाले आके बुला के ले जा रहे हैं पब्लिक। अच्छा जरूरत आ रही, पुलिस वाले आवाज शुरू हो गई। सुन लेके जाओ, 5 मिनट सुन लो रे बड़े भाई। सुनो जी जी। अरब में इतने बड़े बड़े शोरा थे, उनके अशार को अरब की दीवार पर लिखकर टंगाया जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, बोले प्यारे हबीब, अब आपका रब आप पर ऐसा कलाम उतारता है, मेरे मुस्तफा आप वो कलाम इनको सुनाएं तो इनको समझ में आएगा। इनके अशार का जो मेयार है, वो मेयार सारी अरब के शोरा के अशार का मेयार एक तरफ, मेरे मुस्तफा की जुबान से जो कलाम निकल जाए उस कलाम की शान। अल्लाह ताला अरब के शोरा में नबी की शान और अजमत को इल्मी एतबार से इतनी बुलंद किया कि अरब के शोरा का कुरान मजीद प्यारे मुस्तफा की जुबान से सुनने के बाद अरब के शोरा अपना कलाम अरे काबे की दीवार पर लटकाना छोड़ दिए, शर्मसार हो गए। इस मोहम्मद अरबी के सामने हम क्या अपने अशार पेश करें? वाह वाह। बड़े बड़े शोरा छोड़ दिए मेरे भाई। इन्हें बोल रहा वेल्डिंग करते, हुजूर अनपढ़ है, हुजूर अनपढ़ है, तरकारी बेच रहा 5 किलो 5 रुपए किलो भेंडी, हुजूर अनपढ़ है। जाहिल खौफ, जालिमों, नबी के मर्तबे को समझो। नबी का कोई उस्ताद नहीं है, नहीं, नबी को सिखाने वाला अल्लाह है। नबी की इज्जतों को बढ़ाने वाला अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब आखिर बात सुन लो। हालांकि बयान करते करते मूड बन गया, बुखार भी थोड़ा कम हो गया। अगर आप लोगों की ये बेचैनी देखे तो जो है बयान खत्म कर देना। देखो चलने दो कोई बात नहीं, कीजिए हजरत, बयान कीजिए। यार आवाज कम हो गई यार। हल्लू बढ़ा दो, जो हल्लू बढ़ा दो, उनको नहीं सुनाया जैसा बढ़ा दो। कोई आयत पढ़ के फूक दीजिए आप। आप सुनो मसले को, नहीं पड़ गई सुभान अल्लाह। राजशाह अपना भाई है। आप इसकी इतनी रहते बेटा, इतनी अब ज्यादा मत पढ़ा।